Okay, I have got the message that recording in progress. Now let us try to understand the full concept first. First of all, let me know, are you listening properly? Is there any problem regarding my voice clarity? No, sir. Very good. See, first of all, try to understand what is parallel line and transversal. You know the meaning of parallel line. What is parallel line? Can you give me the examples of parallel line? No, sir. No. So let us understand here. See, what is written here? Here, two lines which lie in the same plane and do not intersect each other are called parallel lines. This is the definition of parallel lines. You underline this from here to here. Two lines which lie in the same plane and do not intersect each other are called parallel lines. Opposite edges of a ruler, opposite edges of a bridge, railways line, etc. are examples of parallel lines. Let me make you understand. First, did you underline? Let me know first. Yes, sir. Underline. Okay. So two lines which lie on the same plane. Wherever you will see two lines which lie on the same planes, मतलब एक जगह पर रखा है. Sir, sometimes your voice is cracking. Now are you listening? Yes, sir. Okay. So two lines which lie at the same plane. मतलब दो लाइन ऐसा रखा हो जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता हो, मतलब काटता नहीं. एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखो, ये पटरी का लाइन, ये सीधा जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है. ठीक है. Yes, sir. So this is called parallel lines. अब टेबल का दो किनारा अपोजिट साइड, एक उधर और एक इस साइड, ये पैरेलल लाइंस. तो इस तरह का जो भी लाइन होगा वो पैरेलल लाइन होगा. इस तरह से जो भी होगा वो पैरेलल लाइन. अंडरस्टूड? Yes, sir. बंद कर दीजिए. Sir, your voice is not coming. Okay, you will listen. When I will speak, then you will listen. Now are you listening? Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइन. इस तरह का जो भी लाइन होगा उसे पैरेलल लाइन कहते हैं, जो आपस में एक दूसरे को काटता भी नहीं. एग्जाम्पल्स के तौर पर तुम्हें दिखाता हूँ. व्हाइट बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है. Yes, sir. दिस लाइन इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस. ये क्या है? आर यू सीइंग व्हाइट बोर्ड? Yes, sir. So I have drawn a line, parallel lines. Are you able to see? Yes, sir. तो इस तरह का लाइन जो भी होगा वो पैरेलल लाइन होगा. वो क्या हो जाएगा? So your voice is very much cracking. But there is no problem in that. Are you listening properly? But sir, sometimes your voice is cracking. Sometimes now you listen. Okay. Now are you listening now? Yes, sir. But sir, half of your voice is coming. Half of it coming. Now is it okay? Now is it okay? Now are you listening? Now are you listening? Now are you listening? Yes, sir. Okay, are you able to see the screen whiteboard on the screen whiteboard? Yes, sir.
So this kind of line is called parallel line. This is parallel line which never intersects each other. एक दूसरे को कभी काटे नहीं, साथ में हो, इस तरह से ये parallel line होगा. So give me the some examples of parallel lines. Parallel lines के example दो. रेलवे का जो पटरी है, the railway track. Right. Railway Yes. track is also parallel line, and two edges of the cot, table, bench and desk. दो किनारा टेबल, बेंच एंड डेस्क का, वो भी पैरेलल लाइन होगा. ठीक है. Yes, sir. So you see here the book. These are the two edges. This is parallel lines. So opposite edges of a ruler, scale two edges, दो किनारा स्केल का, that is also called parallel lines. Opposite edges of bridge, कोई ब्रिज हो जिस पर चल रहे हैं तो उसका दो किनारा. इस तरह से जो भी हो, यहाँ देखो, इस तरह से सीधा, इस तरह से हो या ऐसे हो या इस तरह से हो या ऐसे हो, लेकिन ये दोनों सीधा हो. So this is called parallel line. Understood? Yes, sir. So this is called parallel line. Now you see examples here. The examples are given here. Railway track also. The symbol this means is parallel to. अब इस symbol का मतलब ये है, यहाँ this symbol, this symbol, this symbol, this symbol, this symbol means to parallel. Yes, sir. Is parallel to. Wherever you will find this symbol means this symbol means this is parallel to. ये Parallel to. yes, ये parallel का symbol है. This symbol parallel means is parallel to, and thus L is parallel to M. In the picture, L is parallel to M. Here. Stop. Here, this line is given here, this rays, and this is also the second one. It has name L and the second one name has M. So we can say that L is parallel to M. तो हम लोग कह सकते हैं कि L जो है M के parallel है. कह सकते हैं कि नहीं? Sir. Okay. You will get the video of this class, so you just listen properly. Okay, you will not face any problem. Yes, sir. So thus L is parallel to M is denoted by L parallel to M. तो अगर मान लो कोई हम लाइन खींचते हैं इस तरह से, यहाँ देखो एक लाइन हम ये खींच दिए, दूसरा ये खींच दिए, एक का नाम रख दिए A और दूसरे वाले का नाम रख दिए B. ठीक है? ठीक है, बात समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो यहाँ A पैरेलल है B के, तो उसको लिखा इस तरह से जाएगा A is parallel to B. ये पैरेलल का मतलब, ठीक है? Yes, sir. Next, two line segments are parallel if they lie in the same plane and do not intersect each other, even if they are extended indefinitely. Two line segments are parallel if they lie in the same plane and do not intersect each other, even if they are extended indefinitely in the both directions. PQ is parallel to RS. So here in the picture is given this picture. PQ, okay, PQ is one line and RS is the second one. So PQ is parallel to RS. अगर दोनों साइड लाइन को बढ़ाया भी जाएगा तो ये पैरेलल ही रहेगा, बस आपस में सटना नहीं चाहिए, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा. So here PQ is parallel to RS. Now see here, distance between two parallel line. अब दो पैरेलल लाइन के बीच में दूरी को पता कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ देखो PQ एक पैरेलल लाइन है
और आर एस, यहाँ पिक्चर देखो, और आर एस दूसरा पैरेलल लाइन, यस सर। पी क्यू एक पैरेलल लाइन है और आर एस एक दूसरा पैरेलल लाइन है। तो अब इस दोनों के बीच का जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये जो दोनों के बीच का दूरी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो इसका दूरी है इतना सा, उसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे या पता करेंगे? तो इफ दे आर पैरेलल, as shown in figure 2, then the distance between them does not change. We may verify this fact by measuring the distance between them at different points. तो अगर कोई लाइन पैरेलल होगा तो उस दोनों के बीच का दूरी सेम होगा। मान लो यहाँ से यहाँ का दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर का भी दूरी 2 सेंटीमीटर ही होगा कि नहीं? यस सर। लेकिन यहाँ देखो ये पैरेलल नहीं है, ये तिरछा लाइन है और ये भी एक तिरछा लाइन है कि नहीं? यस सर। तो what kind of pictures will say parallel? You understood that? तो किस फिगर्स को पैरेलल बोलेंगे वो तो समझ गए। The distance between two parallel lines is the same everywhere. दो पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा हर जगह सेम होगा। परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर लाइन समझते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है। परपेंडिकुलर एकदम ही आसान है। देखो परपेंडिकुलर यहाँ देखो, मैंने एक लाइन खींचा, देखा तुमने? यस सर। और उसके ऊपर से कोई भी लाइन गिरा देंगे तो ये हुआ परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। यस, परपेंडिकुलर का सिंबल ही है ये अपोजिट टी, मतलब उल्टा टी। तो इस सिंबल का मतलब होता है इस परपेंडिकुलर टू। ये एकदम बेसिक है, कुछ नहीं है 258 में। अब आते हैं पेज नंबर 259। चलो 259 में आ जाओ। यस सर। अब यहाँ देखो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, horizontal and vertical lines. Horizontal means what and vertical means what? Horizontal and vertical lines को समझो। ये इससे अच्छा तो हम ऐसे ही समझा देंगे, बुक से इजी तो यहाँ है। यहाँ देखो, हाँ, हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल होता है सीधा लाइन। वर्टिकल क्या होता है? सीधा लाइन। वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल होता है सीधा लाइन। वर्टिकल क्या होता है? सीधा लाइन। बोलो, वर्टिकल क्या होता है? सीधा लाइन। सीधा लाइन। और फिर हॉरिजॉन्टल क्या होगा? सीधा लाइन। वर्टिकल सीधा लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होगा? तिरछा। नहीं, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा वो नीचे मतलब सीधा लाइन, नीचे की ओर सीधा लाइन। ये सब हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? ये सारा। और अगर हम सीधा खींचेंगे इस तरह से तो ये वर्टिकल है। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, वेरी गुड। See here, this line is called vertical. ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल। वर्टिकल। और इस तरह से जो रहेगा उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। और जो इस तरह से अपोजिट टी रहेगा, उल्टा टी टाइप का, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है? और उसके बाद हम लोग पैरेलल पढ़े थे, तो इस तरह का जो होगा वो पैरेलल होगा। दो रेखा हमेशा पैरेलल होगा। टू लाइंस, ये पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल होगा।
Parallel. So vertical about the vertical line, and about horizontal, then about perpendicular, and about parallel. You understood? You have got the concept Yes, of these sir. things? Okay. This is Yes, nothing. sir. ये बहुत easy है. This is nothing. Okay, come to the book again. See here. So whatever, now let us try to understand the oblique lines. What is the oblique line? Horizontal and horizontal and vertical we understood. Now try to understand the oblique line. A line which is neither horizontal or not vertical is called oblique line. अब वैसा line जो ना ही horizontal है और ना ही vertical, ठीक है, वो हो गया oblique line. horizontal के मतलब इस तरह से लेटा हुआ, और वर्टिकल के मतलब खड़ा. ठीक है, समझ रहे हो ना? Yes, sir. वर्टिकल का मतलब क्या हुआ? हम अपना हाथ भी दिखा रहे हैं, दिख रहा है पिक्चर में. खड़ा. Yes, sir. तो इस तरह से जो हुआ वो खड़ा, उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं, और जो इस तरह से सोया हुआ है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल. क्या बोलते हैं? Horizontal line. हॉरिजॉन्टल. Horizontal line. अब जो ना ही हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है, मतलब मान लो तिरछा है, तो उसे ऑब्लिक लाइन बोलेंगे. वो क्या बोलेंगे उसे? Oblique line. यस. हॉरिजॉन्टल तो मतलब हो गया, यहाँ देखो पिक्चर, यहाँ इधर देखो ना सर. हॉरिजॉन्टल हो गया ये, और वर्टिकल हो गया ये. अब कोई तिरछा है, कोई इस तरह से है, कोई इस तरह से है, तो वो हो गया ऑब्लिक लाइन. वो क्या हो गया? Oblique line. अब यहाँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन. अब ये क्या, व्हाट डज दैट मीन? ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज वन इन व्हिच ऑल लाइंस ड्रॉन आर हॉरिजॉन्टल. ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज वन इन व्हिच ऑल लाइंस ड्रॉन आर हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब हो गया कि वैसा जगह है जहाँ पर सारा हॉरिजॉन्टल ही खींचा गया हो लाइन, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया. द लेवल ग्राउंड, द फ्लोर ऑफ रूम, द टॉप ऑफ टेबल एटसेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल प्लेन के वहाँ मतलब कि सारा चीज वहाँ पर हॉरिजॉन्टल ही हो. जैसे जमीन पर हम लोग चलते हैं रूम में, तो पूरा रूम क्या हॉरिजॉन्टल है ना, सारा इस तरह से है सोया हुआ. Yes, sir. तो Yes, sir. जहाँ पर सारा मतलब कि हॉरिजॉन्टल हो, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया. और वर्टिकल प्लेन जहाँ पर सारा खड़ा हो, जैसे कि रूम का दीवार, उसमें सारा रेखा खड़ा रहेगा, लाइन. Yes, you sir. you understood that? Yes, sir. Okay, now come to at page number 260. Sir came. Okay, so you see that some more illustrations, means some more examples are given here. The following illustrations show the objects in vertical. तो यहाँ जितना भी है ये क्या है, सारा वर्टिकल में है. ये इंसान Yes, जो sir. खड़ा, ये वर्टिकल है, रॉकेट वर्टिकल है, ये जो इस पर सूटकेस है ये वर्टिकल है, और ये भी वर्टिकल है. सारा वर्टिकल है ना, मतलब खड़ा. Yes, sir. ये भी इंसान भी खड़ा है, देखो रॉकेट भी सीधा है, और इसके इस पर जो रखा हुआ ये भी और ये भी, तो ये सब वर्टिकल हो गया. ये क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? वर्टिकल हो Vertical. गया. और ये हॉरिजॉन्टल हो Vertical हो गया. गया. यहाँ एरोप्लेन सीधा है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया. यहाँ देखो ये एरोप्लेन सीधा है और ये भी सीधा है. ठीक है. Yes. अब ये लड़की जो स्लाइड कर रही है, तो Yes, ये sir. तिरछा है. और यहाँ कार जो चल रही है ये भी तिरछा है, तो ये ऑब्लिक हो गया. तो ये वर्टिकल का एग्जांपल Oblique. है, ये हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल है, और ये ऑब्लिक का है. ये वर्टिकल, Oblique. हाँ ये हॉरिजॉन्टल, और ये Horizontal. ऑब्लिक. Oblique. Oblique. तो समझने में कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में. टू चेक वेदर एम पैरेलल टू एन. अब चेक करना कि कोई लाइन किसी के पैरेलल है कि नहीं, तो वो बहुत ही इजी है. अब सीधा हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 18A में. एकदम ही इजी है. 18A का क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन. Identify parallel line statements in each of the figure given below. तो अब हम इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ बोलो तो.
इस सब पिक्चर में पैरेलल लाइन को आइडेंटिफाई करना है। तो ये आसान है या नहीं? यस सर। तो चलो बताओ फिर क्या होगा पहले वाले का। सर आवाज बताओ ना फिर इसका पैरेलल लाइन कौन कौन सा है? यहाँ पैरेलल लाइन कौन है फिगर 1 में? पी एम नहीं नहीं, एल एम। ये एल एम और एल इसके एम बाद क्यू आर। ये देख रहे हो ना, ये क्यू एल एम। आर हाँ, एल एम पैरेलल है एल एम क्यू आर के। क्यू आर क्यू आर। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ देखो इस तरह से, एल एम एल इज एम पैरेलल टू क्यू पैरेलल टू आर। क्यू आर। देखो इसका आंसर इस तरह से है या नहीं, बुक में देखो। यस सर। तो फिर कितना आसान है। तो अब हम लोग आते हैं सेकंड फिगर में। सेकंड फिगर में कौन कौन सा पैरेलल है, एक एक करके बताओ, हम लिखते जाएंगे। डी ई सर डी ई। इसमें बहुत सारा पैरेलल निकलेगा तो वो बताना है, शुरू से बताना है। यस सर। जैसे जैसे ए बी पैरेलल हो जाएगा बी डीसी के। ए बी पैरेलल हो जाएगा डीसी के, नहीं होगा? सी बी। नहीं नहीं, ये देखो पहले, ये ए बी पैरेलल है ए डीसी बी के, है ना? ए बी पैरेलल डी है सी। डीसी के। पहले देखो, सुनो ना। यस सर। ए बी पैरेलल है डीसी के, तो सबसे पहले यस सर। लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू डीसी। एक निकल गया। अब दूसरा क्या यस सर। निकलेगा? अब दूसरा क्या निकल जाएगा? दूसरा हो जाएगा ए डी इज सी बी पैरेलल टू ए डी पैरेलल टू ए डी ए डी ए डी पैरेलल इज टू बी पैरेलल टू ए डी पैरेलल टू बी ए सी। डी ए डी पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ देखो, ये ए डी है और ये, बोलो, ए डी के बाद सी बी बी सी बी ये सी वाला। हाँ, बी सी। तो ए डी और बी सी पैरेलल है, तो दूसरा हो जाएगा ए डी पैरेलल टू बी सी। और उसके बाद ए डी पैरेलल टू बी सी। और उसके बाद तीसरा क्या निकलेगा? डीई पैरेलल टू एफ बी। तीसरा क्या निकलेगा? डी ई। यस, ये अंदर वाला डीई पैरेलल डी टू ई डीई पैरेलल टू एफ बी। डीई पैरेलल टू एफ बी। यस, तुम बी एफ भी बोल सकते हो, ठीक है? तो ये डीई पैरेलल टू यस सर। एफ बी। समझने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो इसमें 3 पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है? एक हो गया ए बी डी सी, फिर ए डी और बी सी, फिर डी ई और एफ बी। तो देखो ये 3 आंसर है। देखो तो, बुक ओपन करो, आंसर वाला पेज, और चेक करो आंसर, यस सर। है ना? यस सर। समझने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो तीसरा नंबर में, और तीसरे नंबर में भी ढेर सारा पैरेलल निकलेगा। तो बताओ कौन कौन सा पैरेलल है इसमें? देखो डीई और उसके बाद बी ए। ये डी ई यहाँ बी ए डीई बी ए एक हो गया, उसके बाद ई एफ और सी बी ई एफ और हाँ, ई ये एफ और सी बी और सी बी। यस, और फिर उसके बाद ए एफ सी डी ए एफ सी डी और सी डी। यहाँ भी 3 है। तो देखो बुक में आंसर मैच करो। यस सर। और फिर इसके बाद ये चौथा नंबर फिगर में तो ढेर सारा पैरेलल आएंगे। यस सर। तो इसमें एक एक करके निकालते चलो, देखते हैं। इसको हम पिक्चर को बड़ा करते हैं ताकि ढेर सारा इसमें से भी हम लोग निकालेंगे।
इसमें अभी ढेर सारा निकलेगा इस पिक्चर से, तो अब इससे हम लोग निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। लेट अस Yes, फाइंड sir. आउट। तो बोले इसमें क्या होगा, पी क्यू और यू टी। यहाँ देखो सबसे पहले ये पी क्यू PQ और UT और और यू UT देखो सबसे पहले निकला पी क्यू पैरेलल है यू टी के, और ठीक है, UT. ये नंबर Yes, 1। sir. अब नंबर 2 में VW नंबर यस वी डब्ल्यू एस VW आर, वी डब्ल्यू एंड एस आर, ये WSR वी डब्ल्यू एंड एस आर, SR. वी डब्ल्यू पैरेलल है एस आर। और बोलो। थर्ड नंबर में VU हाँ वी यू क्यू आर, वी यू क्यू आर, VUQR और ये क्यू आर। थर्ड नंबर और हो गया वी यू क्यू आर। TSWP चौथा नंबर Yes, sir. टी एस डब्ल्यू पी, वेरी गुड। वेर इज टी एस एंड डब्ल्यू पी, वेरी गुड। टी एस इज WP पैरेलल टू डब्ल्यू पी। और उसके बाद क्या है, U 5 नंबर में UP वेरी गुड। 5 नंबर में यू टी, ये यू टी, और उसके बाद वी एस। TQ नो नो, यू टी और वी एस UT और फिर यू, वी एस एंड यू टी। UT सर UT हो चुका है ये सॉरी वी एस पी क्यू, वी एस VSPQ और पी क्यू, तो ये हो जाएगा PQ वी एस पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। यस सर समझने में कोई प्रॉब्लम? सर PQ भी पहले हो चुका है 1 नंबर हाँ तो फिर दोबारा भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यू ठीक है, UP सर यूपी और UP भी ना होगा हाँ यूपी और टी क्यू, यूपी और टी क्यू। UP और TQ समझ गए? कोई प्रॉब्लम है? नो सर सर बहुत हल्ला हो रहा हाँ तो वो ट्रेन में है। तो कोई प्रॉब्लम समझने में? है नो सर कितना आसान था, आसान था कि नहीं? यस यस सर अब देखो नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक। या सिर्फ पहचानना है कि कौन सा हॉरिजॉन्टल है और उसके बाद वर्टिकल है और ऑब्लिक है, तो एकदम आसान है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। तो द बॉटम एज ऑफ ए डोर, एज का दरवाजे का निचला बॉटम एज क्या होगा? कि कोई भी दरवाजा है उसका बॉटम एज वर्टिकल वर्टिकल, तो ये भी हो गया। अब सेकंड नंबर ए सोल्जर स्टैंडिंग इन दैट अटेंशन पोजीशन, को सोल्जर जो अटेंशन पोजीशन में खड़ा है तो क्या होगा? वो भी वर्टिकल होगा, वर्टिकल ये भी वर्टिकल हो यस गया, सर ये भी हो गया। और थर्ड नंबर क्या होगा? थर्ड नंबर है द हैंड रेल, थर्ड नंबर हैंड रेलिंग और स्टेयरकेस वो जो सीढ़ी पर चढ़ते तो सीढ़ी पर जो दीवार होता है तिरछा, तो वो हो गया ऑब्लिक। ओब्लिक और उसके बाद नंबर 4 ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल, एक सीढ़ी दीवार पर इस तरह से हो तिरछा, तो ये भी हो गया ऑब्लिक। ओब्लिक और फिर उसके बाद नंबर 5 क्या हो जाएगा? द हिंज एज ऑफ ए डोर, हिंज एज ऑफ ए डोर, ये भी हो जाएगा वर्टिकल। यस, दरवाजा कुछ भी हो वो खड़ा ही होता है। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल, बोलो लास्ट वाला क्या होगा? होराइजन एट सी, समंदर का जो किनारा होता है वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल यस हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये तो होराइजन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 भी क्लियर हो गया। यस सर एनी प्रॉब्लम? नो सर अब 4 नंबर स्कूल में समझाएंगे, स्कूल आओ तो समझाते। यस सर छुट्टी का टाइम रखेंगे क्या? हाँ आज मेरा क्लास है क्या?
आज मेरा क्लास है, देखो। सर आज फ्राइडे के दिन तो आपका क्लास नहीं होता। फ्राइडे को नहीं होता, तो छुट्टी के बाद थोड़ा बैठना है 10 मिनट। नो सर। वैसे अभी जितना समझाए यस समझ सर। में आया ना? यस सर। ठीक है, ओके। अभी इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हम सेंड करते हैं 10 मिनट में, ठीक है? यस सर। ओके, बाय।